From yesterday we started with few more advanced things such as what-if analysis, solver, and many more things. So biggest use case for the goal-seek analysis is um, to identify the limitation or gap based on the condition. समजा तुम्हाला काही टार्गेट दिलंय राईट आणि काही कंडिशन्स असतात म्हणजे एवढा सेल झाला पाहिजे एवढं मार्केट मध्ये प्रॉफिट आलं पाहिजे एवढा प्रोडक्टचं सेल झालं पाहिजे सो बेस्ड ऑन दॅट कंडिशन यू फाइंड आउट हाऊ मच यू नीड टू अचीव तुमचं गोल अचीव करण्यासाठी तुम्हाला काय लिमिटेशन आहे किती व्हॅल्यूची कमी पडते हे तुम्ही अनालाइज करता by using goal seek or solver. So it is nothing but a conditional based analysis or conditional based prediction. Value तुम्हाला predict करायची और gap तुम्हाला find out करायचा आहे between the target and the actual. Okay? थोडं पुढे सरकून बसू. इकडून पण बसलं तरी चालेल काही इश्यू नाही असं पुढे येऊन स्क्रीन सगळ्यांनाच दिसेल. तुम्ही पण इकडे बसू. ओके ठीक है नॉट एन इशू जिन्होंने कल ज्वाइन किया है ग्रुप में चेक द ग्रुप डिस्क्रिप्शन में सारे फाइल्स आपको मिलेंगे ओके क्लियर एवरीवन दोज हु हैव जॉइंड लेट ग्रुप डिस्क्रिप्शन में Yes, sir. ओके गुड चलो सो हमने कल से स्टार्ट किया था गोल सीक एंड सॉल्वर एंड आप लोगों ने होमवर्क किया है उसका राइट सो गुड so next what we'll learn is few more things which are pending such as scenario manager if you go to data what if analysis right हमने ये कल ये हमने कल देखा solver and then goal seek so what we will cover today scenario manager data table and data analysis okay थोड़ा advance और ज़्यादा again the condition is same whenever you need such options you can utilize maybe data analysis tool pack हमने कल enable किया है that's why you are seeing that option right कल हमने फाइल options go फिर उसके बाद हमने select किए थे दो options clear so let us see what is scenario manager as name suggests scenario means different uh, different situations which your business go through um, if I want to give you an example maybe assume you are a shopkeeper selling some t-shirts or shoes so whenever there are some festivals or big billion day sale so what people generally offer is more discount whatever the current discount is 5% but during the big billion or during the festival they tend to offer more percentage as in instead of 10 they will give 20 25 30 or there will be a hourly sale like 10 to 12 some rate all those things no big billion day so how to find out whether whatever scenario I generate like suppose I am shopkeeper and big billion day is going to come in the September so what should be my percentage or what should be my strategy how much percentage discount I should give how will you decide मतलब ये कैसे डिसाइड होता है कि कितना डिस्काउंट देना है कितना नहीं देना है कौन से प्रोडक्ट पे कितना देना है जस्ट According your material available. हॅलो हो चालेल या क्लास सुरू आहे तसं आहेत ते शुभम वगैरे बाकीचे इथे हो okay yeah so depends upon the stock again
So how much percentage, but to clear the stock should I give it for a free, म्हणजे फ्री मध्ये द्यायचं का स्टॉक आहे म्हणून, or नाही should I नाही give सर. it to 80%, 90%? What should be the discount percentage? Or let's put it in a better way. जर मी या प्रोडक्टला 60% डिस्काउंट दिला तर किती प्रॉफिट, जर या प्रोडक्टला मी 50% डिस्काउंट दिला तर किती प्रॉफिट, और मला लॉस होत आहे का? सो हाउ विल यू फाइंड आउट? So all It's all these, depend on your purchasing order. yes, so that can be one of the case, but what I want to indicate here is all these are the situations you will face in the business, or हे सगळे conditions as a business owner. Yes, Pushkar, I have not shared yet anything, so yeah. Okay. ठीक है, now I guess it is visible. Okay, so to analyze all these situations, जो भी आपके business में situations आएंगे, अलग अलग conditions आएंगे, अलग अलग ऑफर्स आएंगे, अलग अलग प्रमोशनल ऑफर आपको देना पड़ेगा बिजनेस ग्रो करने के लिए, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये एनालाइज करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड सिनेरियो मैनेजर. ओके, so we will not sorry, what we will do is we'll understand scenario manager with respect to a simple use case, as in regular day to day life, अपने लाइफ में एज अ सिचुएशन जो आता है उसके बेसिस पे हम ये सिनेरियो मैनेजर अंडरस्टैंड करेंगे. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपका सिचुएशन है, अभी आप पुणे में है, ओके, यू आर डूइंग सम XYZ जॉब, राइट, एंड देन आपको एक अच्छा जॉब ऑफर आया फ्रॉम बैंगलोर और फ्रॉम मुंबई. सो करंटली आप कुछ 30-40,000 अर्न कर रहे हैं, बट मुंबई में दे आर ऑफरिंग यू 70,000. सो आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, हाउ विल यू डिसाइड? यस, सो व्हाट यू डू इज यू एनालाइज. आपका घर का रेंट कंपेयर करते हो, मुंबई वर्सेस पुणे, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपेंस, ट्रैवल, फूड, ये कंपेयर करके अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट हो रहा है, और इफ यू आर अर्निंग मोर देन पुणे then only you will get, right? Or else मान लीजिए अभी आपका जॉब, you are earning 40-50,000, in Bangalore they are giving you 70,000. At the top it looks so good, but expenses in Bangalore are very high, म्हणजे फूड वगैरे खूप जास्त महाग आहे. सो अल्टिमेटली तुमचं सेव्हिंग विल डिसाइड whether you should join that, whether you should go to Bangalore or not, right? Understood everyone? So let me open the Excel. So this is one of the scenario manager case where I am doing a monthly budget. So suppose my monthly income is 70,000. Okay, I am in a I am in Pune. My monthly income is 70,000, right? And then sorry, then check मेरा घर का रेंट कितना है, ग्रोसरीज कितना जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कितना है, मूवीज पे कितना खर्चा हो रहा है, एंड मिसलेनियस 2,500. सो अल्टीमेटली टोटल खर्चा कितना हो रहा है 34,000. फिर सेविंग कितना आ रहा है 35,000, राइट? और ऐसा ही सेम सिचुएशन आप मुंबई के लिए, बैंगलोर के लिए आपको बना, राइट? देन कंपेयर करना टोटल सेविंग, एंड देन यू कैन टेक अ डिसीजन. दिस इज नथिंग बट अ डेटा ड्रिवन डिसीजन. ऐसा नहीं कि बैंगलोर अच्छा है, मैंने बैंगलोर नहीं देखा है, चलो चलते हैं बैंगलोर के लिए, ऐसा होता है क्या, राइट? और this is not how businesses take decision, as in if they feel something is good. ऐसा नहीं होता. Everybody wants numbers, everybody want some proof. So this is the proof, right? Some more, in case of businesses, whenever they want to enter something new or do something new, they put all these numbers on a paper and then decide, okay, I will do business here. And then they analyze their situation in next year, next to next year. हमने जो प्लान किया था वैसे वर्कआउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है तो बेच दो, खत्म, ट्राई समथिंग एल्स, right? That's how the businesses work, or that's how things move on in the life.
इट्स नॉट लाइक कि आपको अच्छा लगता है और किसी और को अच्छा लगता है तो वो बिजनेस करेंगे. That is not how it works. Clear? So I want to do analysis here. So what I will do is click on data, what if analysis, scenario manager. Okay. So it's already available. Maybe, okay, don't get confused. I will delete everything. Chalo. We'll start again. Data, what if analysis, scenario manager. Okay. हो गया. डेटा कहाँ से है? यहाँ पे है डेटा टैब. सिनारियो मैनेजर इज इनसाइड दिस व्हाट इफ एनालिसिस. इसके अंदर सिनारियो मैनेजर. देन आपको ये नया विंडो ओपन होगा. क्लियर? दिस ऑप्शन आई एम टॉकिंग अबाउट. सिलेक्ट कीजिए. देन ऐड द सिनारियो. ओके. यहाँ पे सिनारियो का नेम दीजिए. नाउ जॉब इन पुणे, कुछ भी दे सकते हो. जॉब इन पुणे. पुणे का जॉब, नहीं तो जॉब पुणे ऐसा भी लिख सकते हो. जॉब इन पुणे. ओके. आपको पढ़ने के लिए अच्छा हो इसीलिए आई एम पुटिंग द नंबर. देन चेंजिंग सेल, कौन कौन से सेल्स चेंज करना है. लेट्स इनकम चेंज होगा आपका, राइट. देन कॉमा करके मंथली रेंट वगैरह नीचे के 4 सेल चेंज हो जाएंगे. क्लियर? इतना ही चेंज होगा. देन टोटल एक्सपेंस एंड सेविंग आर जस्ट आपने फॉर्मूला लगाया है समेशन ऑफ ऑल, राइट. देन प्रेस ओके. ओके. देन आपको ये नया विंडो ओपन होगा. तो ये विंडो में मंथली इनकम यहाँ पे आपको हो रहा है. मंथली इनकम 70,000. जो हमने वैल्यू लिखा है इनबिल्ट, मतलब जो प्रीवियस वैल्यूज वेर अवेलेबल, तो वो वैल्यूज वहां पे पॉपुलेट हो रहा है. ओके. क्लियर? एक बार चेक कीजिए. मंथली रेंट 70, हाउस रेंट, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी, मूवीज एंड मिसलेनियस. ओके. क्लियर? देन प्रेस ओके. तो ये हो गया जॉब इन पुणे सिचुएशन. वापस और एक नया सिचुएशन और सिनारियो आपको क्रिएट करना है. तो क्लिक ऑन दिस. इसका नाम दीजिए जॉब. कहाँ पे जाइए? जॉब इन मुंबई. ओके. नीचे सेल ऑलरेडी सिलेक्टेड है. प्रेस ओके. चलिए अभी बताइए मंथली सैलरी कितना है आपको. मुंबई में जॉब लग गया तो कितना सैलरी चाहिए आपको? ओके 90,000. गुड. हाउस रेंट कितना होगा मुंबई में? एनी आइडिया? 20,000? 20 तो नहीं होगा डेफिनेटली. चलो 35 हो सकता है. एनीवन फ्रॉम मुंबई? ठीक है. ग्रोसरीज कितना लगेगा? चलो 7,000 पकड़ते हैं, है ना. इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा, एसी बहुत ज्यादा लगता है ना वहाँ पे. 2,500. ऑनलाइन एनी सजेशन, एनी वैल्यूज? चलो मूवीज पे कितना खर्चा होगा मुंबई में? 10,000. ओके 10,000. महीने आपको का लगा दो ना सर. ठीक करते हैं. महीने का लगा दो. आपको ओके. चलो मे भी आपको शाहरुख खान के साथ देखना होगा ना पिक्चर इसलिए. ओके. मिसलेनियस सर बोलो. 90,000 लगा देंगे तो वो लगा देंगे सर. ओके वो भी सही बात है. ओके. मिसलेनियस कितना खर्चा होगा? मिसलेनियस मतलब ऐसे ही लाइक इफ यू आर समथिंग. ओके डिपेंड. 4,000. ओके 90,000 सैलरी पे 4,000 मिसलेनियस होगा क्या? ठीक है डिपेंड. वही तो बोल रहा हूँ 10,000 पूरा निकाल लेगा. यस. ओके. चलो आई विल प्रेस ओके. अभी ये मेरा हो गया जॉब इन मुंबई. चलो और एक जगह पे जॉब आपको ऑफर आया है. लेट्स ऐड और कंडीशन. जॉब इन कहाँ पे चाहिए बताइए? बैंगलोर. ओके बैंगलोर में चाहिए. चलो जॉब इन बैंगलोर. प्रेस ओके. क्विकली अभी यू हैव वी स्टार्टेड विद 70 था यहाँ पे. So let's make 1,20,000. ओके. हाउस रेंट बहुत ज्यादा है वहां पे. इवन मुंबई से भी ज्यादा है 45.
ग्रोसरी ठीक है, चलो मेक इट 7,000. इलेक्ट्रिसिटी 22,000. ओके, आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम नंबर्स, मुझे रैंडम नंबर्स में इंसर्ट कर रहा हूँ. मूवीज 3,000. 2000. एंड मिसलेनियस, चलो बेंगलोर इज थोड़ा स्टार्टअप कल्चर है, तो आपने कहीं 6,000 कोर्स कर दिया, स्टार्टअप कैसे करना है, जॉब का कैसे करना है, so make it a 6,000. okay, press okay. So now I have three situation and I need to compare. So क्या करना है आपको, जॉब इन मुंबई में सिलेक्ट कीजिए एंड देन क्लिक ऑन द शो. यहाँ पे दिख रहा है जॉब इन मुंबई, जॉब इन बैंगलोर, तो रिक्वायर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, नीचे शो का बटन है. ओके, क्लिक ऑन, देखिए आपके वैल्यू चेंज हो गए, राइट. मंथली इनकम 90 हो गया, आपने जो वैल्यूज दिए वो हो गया, एंड फाइनली आउटपुट आया 38,500 मुंबई में. पुणे में कितना सेविंग था, क्लिक कीजिए पुणे, शो 35,35. बैंगलोर में कितना है, ओ 56,000. क्लियर, डायरेक्टली आपके आंसर्स आ रहे हैं, यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग. क्लियर. नाउ यू वांट समरी, ऐसे हर बार ऊपर नीचे शो करने के बजाय यू वांट समरी समथिंग, so you can select the summary here, है ना. click on this, it will ask for something, I want here, लोड हो रहा है. ओके, हो गया. ओह सॉरी, जस्ट अ सेकंड, रिजल्ट चाहिए था वहां पे, आई डिड नॉट रीड. जस्ट अ सेकंड, आई विल क्रिएट समरी वंस अगेन. इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर, वो सेव रहता है, एक बार आपने सेव कर दिया. समरी, एंड आई वांट रिजल्ट सेल टू बी दिस वन, मतलब सेविंग के हो रहा है. ओके गुड, चलो नाउ इट इज बेटर. देखिए करंट वैल्यूज, ठीक है, करंट वैल्यू इग्नोर कर सकते हो. जॉब इन पुणे, मुंबई, बैंगलोर, मंथली इनकम कैसा, 70, 90, 120, हाउस रेंट 20, ये है. मिसलेनियस, ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी, मिसलेनियस, फिर अल्टीमेटली आपको यहाँ पे समरी आ गया 35, 38, 56. नाउ यू कैन क्लियरली डिसाइड कि क्या करना है, राइट. सो सेम केस, मंथली आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, मंथली इनकम और प्रॉफिट 100 रुपीज हो रहा है, और हाउस रेंट की वजह डिस्काउंट डाल दीजिए 10%, 20, 30%. अल्टीमेटली प्रॉफिट का फॉर्मूला पे प्रॉफिट का आंसर मिलेगा आपको. तो हर एक सिनारियो के लिए, जैसे हमने जॉब इन पुणे वगैरह लिया था, आप डाल दीजिए बिग बिलियन डे सेल, दिवाली सेल, न्यू ईयर सेल, तो सेल के हिसाब से नीचे जो भी कंडीशंस आपने लगाया है वो सब कैलकुलेट हो गया, आपको अल्टीमेट आंसर मिल जाएगा, राइट. सेम सिचुएशन, जो अपना ये दिस वन पर्सनल सिचुएशन, दैट इज अ बिजनेस केस, जो भी बिजनेस वाइज सिचुएशन है, फंक्शनैलिटी विल रिमेन सेम. एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी आपको आपके फॉर्मूला के साथ करना है, वो आप एक शीट बना सकते हो यहाँ पे, और उस शीट के हिसाब से आपको वैल्यूज इंसर्ट करना है. क्लियर एवरीवन, क्लियर. हमने तो सपोज हमने मंथली इनकम ये तो डाल दिया, लेकिन पुणे में क्या और बेंगलोर में कितना मिलेगा वो नहीं, वो तो सेविंग है ना, फॉर्मूला है इसमें, दिस इज अ फॉर्मूला. ऊपर ये आउटपुट में आएगा ना आपका आंसर, सेव कैसे करना है, टोटल एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस ना, ओके ओके ओके. तो हाँ हाँ फिर हाँ. ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा. आपको क्यों इंसर्ट करना है, कि आप कैलकुलेट करके इंसर्ट करोगे उसमें. नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं बोल रहा था, यस. मैं बोल रहा था कि मानो कि हमें ये मिल गया, ऑफर जो मिल गया था, हाँ, वो ऑफर उसके हिसाब से हमने एक्सपेंसेस डाल दिया, तो वो ऑफर वही कैलकुलेट होता. यस, समरी में आप देख सकते हो यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट हुआ है, 70,000 मंथली इनकम, 90 एंड 120.
तो आपने जो वैल्यू इंसर्ट किया है उसके बेसिस पे सारे नीचे के कैलकुलेशंस हो गए। ओके, अल्टीमेटली आपको ये सेविंग का फॉर्मूला निकाल के दिया है कंपैरिजन के लिए। अंडरस्टूड एवरीवन? ये मेरा कुछ गलत आ सिनेरियो रहा है बेस्ड। थोड़ा सा। ओके, आपने फॉर्मूला अलग लगाया होगा। मैंने और हाँ मैंने बस गलत हुआ है, मेरा मंथली इनकम का ही सेलेक्ट नहीं किया मैंने। हाँ, तो डिपेंड्स, लाइक वैल्यूज आप चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट चेंज होगा। ओके, तो सिर्फ बट सॉरी, अंडरलाइंग सिनेरियो। यस, एक रिपीट प्रोसेस एक बार बता सकते हैं सर, वो सिलेक्शन के। so this is our table, right? What you need to do is click on the data, go to what if analysis, scenario manager, and then the existing scenario will be there. You can provide an M test and then select the cell which was selected. ये देखिए इतने सेल मुझे चेंज करने हैं। पहले तो मंथली इनकम चेंज होगा, हाउस रेंट चेंज हो सकता है, ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी, मूवीज एंड मिसलेनियस, इतना चेंज हो सकता है। तो इसीलिए रिटर्न दिस सेल्स। ठीक ठीक टोटल है सर, एक्सपेंस मैंने वो फॉर्मूला। मंथ। यस, नीचे के जो है ये फॉर्मूला भेज देना। 63 कैसे आया, इसका समेशन 63, ये कैसे आया 56, ये दिस माइनस दिस। ओके, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, मतलब हो क्या रहा है और क्यों सर करना ओके ओके सर, समझ गया। है, व्हाई वी आर डूइंग दिस। क्लियर एवरीवन, ये क्यों करना पड़ रहा है। ओके, सर समरी में जो आउटपुट है वो इज इट यूजफुल समवेयर, लाइक कैन वी सेव इट एज इन द टेबल फॉर्मेट? यस, आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये एज अ टेबल सेव कर सकते हो डायरेक्टली। सिनेरियो समरी, सिलेक्ट, कॉपी एंड देन इफ यू वांट टू पेस्ट समवेयर यहाँ पेस्ट कर सकते हो, राइट? ओके ओके समथिंग लाइक, बढ़िया। इफ यू वांट कॉपी यहाँ से पेस्ट कर सकते हो। ये आपको चाहिए कहीं पे दिखाना है तो दैट यू कैन शो। हाँ, टोटल सेल आपको रिजल्ट सिलेक्ट करना था। व्हेनेवर इट क्लिक समरी पे क्लिक करते हो ना, आपको उस टाइम पे रिजल्ट के सेल पे सिलेक्ट करना है टोटल सेविंग के यहाँ, देन वो पॉपुलेट हो जाएगा। द फर्स्ट टाइम आई मेड अ मिस्टेक, सेव सिनेरियो मैनेजर समरी, क्लिक ऑन समरी। अभी हाँ, यहाँ पे आप वो सेल सिलेक्ट कीजिए, हाँ सेविंग, यस, प्रेस ओके, देन जनरेट आ गया। ओके, ठीक है, सो अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ हाँ, चार्ट यू कैन ड्रॉ, नॉट एन इशू। या वैल्यू सिलेक्ट कीजिए आपको जो चाहिए, नहीं तो ये तीन वैल्यू सिलेक्ट कीजिए डायरेक्टली, इंसर्ट चार्ट, कौन सा चार्ट चाहिए आपको, यू कैन सिलेक्ट। ये देखिए, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट यू हैव सिलेक्टेड द चार्ट। चार्ट क्रिएशन ऑफ चार्ट इज नॉट अ बिग डील। आपको पूरा सिलेक्ट करके चार्ट चाहिए तो पूरा सिलेक्ट करके चार्ट ले सकते हो। इंसर्ट एंड चार्ट, इफ यू वांट समथिंग कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ वो आ रहा है, आपको थोड़ा डेटा चेंज करना पड़ेगा, बट यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। ओके, clear? So next what we are going to look at is one of the example called a data table. Data table, which is third option in a what if analysis. Okay, data में जाके what if analysis, scenario manager, goal seek and data table. So this is what we are going to look at it. Okay, so what is data table and why do we use it, we'll understand, and then उसे कैसे करना है, क्या फॉर्मूला है, क्या कंडीशंस है, all those things we'll see. Okay, so what example we are going to look at is एक लोन रिलेटेड आपको EMI लीजिए, चलो
एक एग्जांपल है ईएमआई का, आपने आईफोन लिया है, ओके, एंड नाउअडेज यू नो कि व्हाट फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे नो कॉस्ट ईएमआई वगैरह मिलते हैं, राइट? तो आपने 1 लाख का फोन लिया है एंड आपको 1 साल का ईएमआई चाहिए, तो हर महीने कितना आएगा, हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड? कुछ फॉर्मूला रहता है, मान लीजिए 1 लाख का है, 10 महीने का है, तो 10,000 एवरी मंथ 1 लाख हो जाएगा, राइट? बट दैट इज नॉट सो सिंपल, उस पे कुछ इंटरेस्ट रहता है, राइट? लोन का टैक्स रहता है, अलग अलग चीजें रहती है, ऐसे डायरेक्टली अमाउंट डिवाइडेड बाय मंथ्स नहीं होते, राइट? तो उसके लिए एक अलग सा फॉर्मूला आता है, कॉल्ड पीएमटी नाम का एक फॉर्मूला है। तो वो क्या करता है, पीरियोडिक मंथली पीरियोडिक आपके जो ट्रांजेक्शन होंगे उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देता है। तो उस फॉर्मूला में आपको वैल्यूज इंसर्ट करना है और वो फॉर्मूला आपको ईएमआई का कैलकुलेशन करके देगा, राइट? जब भी आप फोन खरीदने जाते हो, मे बी बजाज फिनसर्व, ये तो जब भी कॉल आता है आप बोलते हो कि इफ आई वांट टू टेक अ फोन, तो कैलकुलेट करके बताएगा सर आपको 1 लाख का मोबाइल है तो 10,000 के आसपास ईएमआई आपको आएगा, राइट? ऐसे ही रहता है। फिर मान लीजिए somebody cannot afford 10,000, वो बोलेगा कि आई कैन गिव ओनली 8,000, देन सामने से वो बोलते हैं कि ठीक है सर आपका 10 का ईएमआई 12 महीने में होगा, तो आप बोलोगे नहीं सर 8 भी नहीं होता, 5 में चाहिए, तो वो बोलेगा कि वट एवर द मंथ, 15 मंथ, 16 मंथ, मतलब जैसे जैसे अमाउंट कम होता है वैसे मंथ बढ़ते जाता है, राइट? तो ये सारा कैलकुलेशन इतने फास्ट कैसे होता है और क्यों करते हैं, और आपको जानना है कि कितना अमाउंट पे कितने महीने और कितने महीने में कितना अमाउंट, suitable combinations आपको generate करने हैं, तो that time we use a data table, okay? So let's understand with one of the example, लोन अमाउंट। चलिए लोन आपने लिया 1 लाख का, ओके, आपने आईफोन कौन सा है अभी, 15 प्रो मैक्स है ना, समथिंग लाइक दिस आपने लिया है 1 लाख रुपए का ईएमआई पे, सर उस पे इंटरेस्ट रेट है 8%, राइट? बहुत कम है, क्योंकि पर्सनल आई गेस 12% के आसपास शुरू है अभी मोबाइल पे, बट हमने सिंपलिसिटी के लिए चलो 8% ले लिया, ओके। एंड देन टर्म कितना है, 5 साल का लोन है, अज्यूम करते हैं 5 साल का लोन है, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग, और ऐसा नहीं कि आपको 10,000 पे करना है और अफोर्ड कर सकते हैं। सो लेट्स मेक इट 5 years। देन आपको जो अमाउंट कैलकुलेट करना है और आपको जो अमाउंट देना है, दैट बिकम्स 2,227 रुपीज। तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ, विल सी, देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड पीएमटी। व्हाट इट डज इज, ये क्या लेता है, लेट्स चेक। पहले तो अंडरस्टैंड formulas, insert function and then pmt, ओके। तो इसके 3 अलग अलग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने टाइम के लिए, और दिस इज प्रेजेंट वैल्यू, पीवी इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। तो ये 3 फील्ड आप दोगे, देन इफ यू प्रेस ओके, इट विल गिव यू द अमाउंट, ईएमआई का कैलकुलेशन करेगा, राइट? 0% है तो डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, बट इंटरेस्ट बढ़ते रहेगा ना, और जैसे जैसे आप ईएमआई पे करोगे वैसे वैसे लोन का अमाउंट कम होगा, तो उस पे ये परसेंटेज अलग होगा इंटरेस्ट का। So to do all those things, we need 2 more field, such as interest rate per month। अभी 8 है, पर एनम रहता है ये, पर एनम मतलब 12 महीने के लिए, बट एवरी मंथ के लिए कितना होगा, 0.6। कैसे आया, डिवाइड बाय 12, ये देखिए सिंपली B3 डिवाइडेड बाय 12, B3 क्या है, दिस इज 3, एनुअल इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 12 मंथली इंटरेस्ट है, सिमिलरली मंथली मतलब नंबर ऑफ मंथ्स 5 साल के लिए है, बट आप ईएमआई ईयरली देते हो मंथली, इट्स अ मंथली, राइट? तो सारे वैल्यूज मंथली में होने चाहिए, तो हमने इसको भी मंथ में कन्वर्ट किया है, कैसे, 12 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 12, 60 मंथ्स, मतलब आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, 8% इंटरेस्ट है और 60 महीने के लिए वो लोन है, 60 महीने,
तर हे कॉम्बिनेशन असेल तर तुम्हाला किती EMI द्यायला लागेल याचा फॉर्म्युला इथे. What I want answer here, monthly payment formula, insert PMTS. ओके, रेट क्या है आपका? मंथली, ये रेट है. कितना है? ड्यूरेशन n पर 60 एंड प्रेजेंट वैल्यूज 1 लाख रुपए. ओके, प्रेस ओके, आपको आंसर आ गया है, राइट? सो दिस इज नथिंग बट योर आंसर. आंसर इज 2027. इसके पीछे कैलकुलेशन रहते, दोज हु आर फ्रॉम कॉमर्स एंड ऑल, उनको ये मैन्युअली निकालना पड़ता है. मतलब हर महीने कितना चेंज होगा, फिर वो 8% ऐड करना है, रिमूव करना है, राइट? अलग अलग चीजें है उसमें. बट फॉर योर सिंप्लिसिटी what we have done is we have selected this formula PMT. Okay, good question. Can anyone tell me? Just observe करा आणि सांगा. Yes. Right, right. So it signifies कि प्रिंसिपल अमाउंट कम हो रहा है. ओके, टेक्निकली बराबर है, बट एग्जैक्टली देखिए वहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको. ऑनलाइन कॉमर्स, अकाउंट्स, अकाउंटिंग एक्सपर्ट, और किसी ने बैलेंस शीट वगैरह देखा है, प्रिपेयर किया है? यस, Monthly deduction. yes, absolutely. Who is Samruddhi, right? It is nothing but a monthly deduction. Let me explain you how it is. Just a second. अभी आपने बोला कि 1 लाख रुपए का लोन लिया है, तो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए ऐड हो रहे हैं ना, क्रेडिट हो रहे हैं, तो इसीलिए प्लस में आया 1 लाख. और जब भी आपके अकाउंट से पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि EMI क्या करना है आपको, देना है. देना है तो क्या होता है? इट्स माइनस. सो दैट्स अ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. जब पैसे आते हैं क्रेडिट, माए जाते हैं तो डेबिट, सो दैट इज अ माइनस साइन. सो आपके अकाउंट से जा रहे हैं ना, तो दैट्स व्हाई ऑलवेज EMI माइनस में होता है. आपको माइनस में नहीं चाहिए, फॉर्मूला के सामने माइनस लगा दीजिए यहाँ पे, इधर. इट विल मेक इट पॉजिटिव. हो गया पॉजिटिव, राइट? इफ यू वांट मोर, आप अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से वो देख सकते हो. एंड दिस इज PMT इज नथिंग बट ये अकाउंटिंग का ही फॉर्मूला है. ओके, अकाउंट वगैरह रिलेटेड का फॉर्मूला है, फाइनेंस. चलो, लेट अस नाउ कंसिडर. मान लीजिए मुझे 60 महीने के लिए नहीं, मुझे 90 महीने के लिए, 90 मंथ्स के लिए आई वांट टू बाय EMI. मतलब 60 महीने नहीं, मुझे 90 महीने का चाहिए. और मान लीजिए 2000 मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आई वांट 2000 से जो भी कम है वो चाहिए. तो कम कितना, कैसे, कौन से महीने के लिए, हम वो देखेंगे. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ टेबल फर्स्ट. मैं क्या करूंगा, एक टेबल क्रिएट करूंगा. ये देखिए ऐसे 2 रोज एंड 2 कॉलम का एक टेबल क्रिएट करूंगा. उसमें कौन से मंथ चाहिए वो मैं लिखूंगा. 65, 70, 75, 80, 85, 90, आप कुछ भी 88 वगैरह. आई हैव जस्ट फॉर अ सिंप्लिसिटी मैंने लिखा है रैंडमली. ओके, एंड देन यू नीड टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस. ये बॉर्डर लगा के रख दीजिए. एंड देन फर्स्ट सेल, यहां से आगे जो ये सेल है ना, इस सेल में आपको ये फॉर्मूला लिखना है. ओके, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो. ओके, और इज इक्वल टू करके ये सेल को, वहां से ये फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे. ओके, जब भी यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा यहाँ पे फॉर्मूला आएगा. ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज go to data, what if analysis, data table. Okay, data table में रो इनपुट सेल एंड कॉलम इनपुट सेल से सिलेक्ट करना है. तो अभी क्या करना है, रो इनपुट, सॉरी कॉलम इनपुट, हम कॉलम में भर रहे हैं, राइट? सो कॉलम इनपुट सेल आएगा. कौन सा सेल आएगा? ओके, इससे पहले आई नीड टू सिलेक्ट दिस. पहले इस टेबल को सिलेक्ट करना है आपको जहां भी डेटा है. देन गो टू व्हाट इफ एनालिसिस डेटा. एज हम क्या भर रहे हैं, ये कॉलम में डेटा भर रहे हैं, राइट? सो मैं कॉलम सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे.
दिस वन, आपको हाइड करना है तो हाइड कर सकते हो। ये देखिए हाइड अनहाइड होता है, ये एरो हाइड होता है, हर बार देखा होगा। अनहाइड के लिए भी वही ऑप्शन है, देखिए। ओके, हाइड करने के बाद देन यू नीड टू सिलेक्ट आपका क्या चेंज हो रहा है, मंथली नंबर। सो ये नंबर वाला यहाँ पे सिलेक्ट करना है दिस, क्योंकि ऊपर आपने फॉर्मूला लिखा, नीचे क्या चेंज हो रहा है वो लिखिए फॉर्मूला में से। ओके, देन ओपन एस ओके। तो अभी उसने डायरेक्टली इसके अंदर जो भी लॉजिक था वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, और उसके हिसाब से देखिए 65 मंथ है तो 1900 रुपए का ईएमआई आएगा। 90 मंथ के लिए चाहिए 1481 का ईएमआई आएगा। तो इसीलिए उसके पास टेबल क्रिएट रहता है जब भी लोन लेते हो, तो आपको बजट पूछता है कितना चाहिए, 2000 चाहिए, नहीं हो रहा है, ठीक है एक काम कीजिए 1500 का लीजिए। 1500 है तो 88 मंथ्स, राइट, वॉट एवर मंथ्स। ऐसा नहीं कि मैंने 88 लिखा है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। 107, तो 107 के हिसाब से वो डबल क्लिक कीजिए, अपडेट अपडेट हो जाएगा। सॉरी, कॉपी हो रहा है, आपको ये एक्सटेंड करना पड़ेगा फॉर्मूला वापस से पूरा सिलेक्ट करके। सो जस्ट सिंपल, मैं भी एक काम करते हैं, मान लीजिए मेरा बजट 2000 से ज्यादा है, मुझे 3000 देना है, तो क्या होगा, कितने महीने के लिए भरना पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट कैलकुलेशन एज वेल हियर। थोड़ा 30 मंथ से शुरू करते हैं, और आपको क्या चाहिए था 105 ना, चलो सेम, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि बॉर्डर वगैरह लगाना इंपॉर्टेंट है, बट अंडरस्टैंड करने के लिए आपको आसानी होगा फॉर्मूला लगाने के लिए। विदाउट बॉर्डर यू विल नॉट रियलाइज कि क्या हो रहा है ना। इसलिए ड्रॉ द बॉर्डर, एक ऊपर का लाइन हेडिंग छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, फॉर्मूला, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना है, पीएमटी लिखिए, नहीं लिखना है इज इक्वल टू दिस वन, राइट, प्रेस एंटर, वहां पे आ जाएगा। देन सिलेक्ट कंप्लीट टेबल, go to what if analysis, data table, and then कॉलम है या रो है, कॉलम है, राइट, ये कॉलम में भरना है ना ऐसे। देन कॉलम सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मूला किसके ऊपर लगाना है, 60, क्योंकि 60 चेंज हो रहा है हर बार। प्रेस ओके, देखिए आ गया। तो आपका बजट कितना है, 3600 है तो 30 मंथ के लिए होगा, 2500 है तो 45, आपका बजट और कम है 1300 रुपए है तो 107 महीने के लिए होगा। क्लियर, दिस इज हाउ they calculate. But what if there is one more condition, interest rate change हो रहा है, ऐसा नहीं कि हर बार इंटरेस्ट रेट सेम रहता है, हर 3-4 महीने में चेंज होते रहता है, वो आरबीआई के पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह आपने सुना होगा। तो व्हाट इफ आपका जो 0.67 था वो बढ़ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उसका इम्पैक्ट। So let us understand with one more example. इस बार हॉरिजॉन्टल मैंने मैन्युअली यहाँ पे लिखा है 1%, 1.5, 2, 2.5 एंड 3। ओके, परसेंटेज यहाँ पे लिखा है मैन्युअली हाथ से 1%, तो आपको 1.25 चाहिए, 1.005 चाहिए, आप वहां पे लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे लिखा है। देन एज सेम प्रोसेस, एक टेबल बना लो ऐसे, बॉर्डर डाल के, बॉर्डर कैसे, होम, एंड यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन है, एंड द फर्स्ट रो में यहाँ पे इज इक्वल टू करके ये फॉर्मूला, प्रेस एंटर। ओके, देन नेक्स्ट कम्स, पूरा ये टेबल सिलेक्ट करना है, एंड देन गो टू डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल, एंड इस बार रो सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। क्यों रो, क्योंकि रो में मुझे वैल्यू इंसर्ट करना है। यही सेम लॉजिक अप्लाई होता है वी लुकअप, एच लुकअप एंड एक्स लुकअप के लिए। कैसे वैल्यू पॉपुलेट होता है उसके ऊपर आपको रिक्वायर्ड फंक्शन सिलेक्ट करना है। क्लियर, ऑनलाइन समझ में आ रहा है सबको। सो दिस टाइम आई विल फिल इन रो। अभी मुझे बताइए रो में कौन सा वैल्यू सिलेक्ट करूं, जो फॉर्मूला में व्हाट इज चेंजिंग, क्या चेंज हो रहा है इसमें से, इंटरेस्ट ऑफ रेट, हो रहा है मेरा इंटरेस्ट ऑफ रेट। 0.67, यस,
लेट मी सिलेक्ट दिस, देन ओपन करता हूँ, एड्रेस ओके कर देता हूँ। नाउ यू कैन ऑब्जर्व जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ईएमआई बढ़ रहा है। देखिए 2200 था, 2500, 2800, 3200, 3600, 3% के लिए 3% पर मंथ, ये कितना होगा 36%, राइट। इज दिस पॉसिबल? मतलब ये स्कैम लग। ओके, जस्ट ऑब्जर्व, आपने लोन अमाउंट चेंज हुआ है क्या आपका? आपने एक ही लिया था, बट कल जाके आरबीआई ने बोला अभी इंटरेस्ट रेट बहुत कम लग रहा है, बढ़ा दो। तो पहले महीने आप 2000 भरते थे, अभी आप उठ के भर रहे हो 3600। ये स्कैम है ना। मतलब सेम अमाउंट, आपका मोबाइल अपग्रेड हुआ है क्या? 15 का 16 हो गया है क्या? नहीं। No. फिर भी कोई आपको बोलेगा कि इंटरेस्ट रेट चेंज, तो चेंज सब आपको। सो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट महंगाई, इन्फ्लेशन। इसको ही तो इन्फ्लेशन बोलते हैं। सेम अमाउंट के लिए, सेम वैल्यू के लिए यू आर पेइंग मोर, दैट इज नथिंग बट इन्फ्लेशन। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? यही हो रहा है। उनके रिजर्व बैंक ने बोला ये मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, बढ़ाया, तो ईच एंड एवरीथिंग महंगा हो गया वहां, राइट। सो दिस इज नथिंग बट इन्फ्लेशन। तो इसीलिए लोन लेना हमेशा रिस्की रहता है, बिकॉज थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। ओके, आज आपने बॉन्ड पे कोई भी लिख के नहीं देगा कि यही ईएमआई रहेगा। ओके, तो इसीलिए होम लोन वगैरह जब लेते हैं तो 25-30 ईयर्स के लिए लेते हैं। इमेजिन पहले दिन आपने कुछ 10,000 का ईएमआई किया है, एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स घर सेम है, लोन सेम है, फिर भी आप 1 लाख रुपए भरोगे, राइट। सो दिस इज नथिंग बट इन्फ्लेशन, यही महंगाई है। दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। सो सेम अमाउंट के लिए, दैट्स व्हाई आपको थोड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट भी सोचना पड़ेगा। इलेक्शन पे टाइम पे अच्छा गवर्नमेंट भी चूज करना पड़ेगा जो महंगाई के खिलाफ, राइट। आपको आवाज उठाना पड़ेगा। ऑल दोस थिंग्स विल मैटर। होप ऑनलाइन एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट इज हैपनिंग। सो दिस इज Yes, sir. नथिंग बट मनी। यही उनका लॉजिक यही रहता है। आज 2000 मिल रहा है सेम काम के लिए, कल 3000 रुपए मिल रहा है बैंक के लिए। बैंक को कुछ खर्चा बढ़ा है क्या? कुछ भी नहीं। सो दिस इज हाउ बैंक अर्न मनी, राइट। ओके, चलो व्हाट इफ आपको मल्टीपल कंडीशन चाहिए, आपका इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो रहा है, मंथ्स भी चेंज हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहे हैं, देन आपको एक प्रॉपर टेबल चाहिए, विल लाइक दिस। इस साइड इंटरेस्ट रेट है, इस साइड मंथ है। अभी आप फिगर आउट कौन सा है, आपका बजट क्या है? चलो 2500 ये मंथ, ये इंटरेस्ट रेट 2600 ऐसे। So this is how mostly companies prepare all their sheets. तो ये आपको एक्चुअली जब होम लोन लोगे तो ऐसा टेबल आपको दिया जाएगा। तो अभी आप मान लीजिए इस ब्रैकेट में है, बट सेम अमाउंट के लिए सेम मंथ के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इतना देना पड़ेगा। तो वो कंपनी बताएगी आपको व्हाट एवर इट इज। करंटली इंटरेस्ट रेट शुरू है 7% का होम लोन पे, राइट। चेंज हुआ है 0.25 0.50 से चेंज हो रहा है सीजन में इधर उधर, है ना। पहले कम था बहुत 5%, अभी 7 है। सो लाइकवाइज योर वैल्यू विल चेंज। सो कैसे करना है? सेम लॉजिक हमने जो रो एंड कॉलम में किया था वैसे टेबल बनाएंगे। इंटरेस्ट रेट लिखेंगे यहाँ पे 1 to 1.52% एंड इस साइड मंथ्स लिखेंगे, ओके। एंड देन क्रिएट टेबल और इसको क्रिएट अ फार्मूला। ये फार्मूला था, राइट, मेरा इज इक्वल टू करके ये फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, एंटर भी मान लिया मैंने। नाउ पूरा टेबल सिलेक्ट कीजिए एंड देन गो टू डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस एंड, ओके। अभी बताइए कौन सा वैल्यू कहाँ पे लूँ? पहले तो कौन से रो में भरना चाहिए?
कॉलम में या रो में कौन सा वैल्यू फिल करूं? यहाँ पे बताइए। चलो ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट रो में, राइट, और यहाँ पे कॉलम में मंथ, दोनों का वैल्यू करना है, मंथ राइट? यस, दोनों के इफेक्ट निकालना है ना, तो दोनों वैल्यू आने चाहिए यहाँ पे। तो रो में कौन आएगा यहाँ पे बताइए? रो में रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है ना। कॉलम में कौन है अभी? ऐसे कौन है यहाँ पे? month। तो इसको एक्सपैंड करके कॉलम में मंथ सिलेक्ट कीजिए, which is this। by the way, ये पर मंथ कैलकुलेशन पर मंथ हो रही है, इसलिए आई एम सिलेक्टिंग पर मंथ। प्रेस ऑफ ओके। ओके सुशांत, आपको यूनिट को म्यूट योरसेल्फ, नहीं तो इको आ जाएगा रिकॉर्ड में। ठीक, नाउ कंप्लीट टेबल। देखिए आपका बजट क्या है उसके ऊपर डिसाइड होगा। 2516 है, 80 मंथ, 2% इंटरेस्ट रेट, और 3255 3% इंटरेस्ट रेट 90। So all the permutation combinations you have got. So this is mostly used in the finance, उससे बहुत ज़्यादा यूज होता है अलग अलग कॉम्बिनेशंस, अलग अलग चेंजेस। आपके कंपनी का कुछ कैलकुलेशन है प्रॉफिट का, तो लिखिए यहाँ पे फॉर्मूला, लगाइए टेबल, फिर कौन सा वैल्यू चेंज हो रहा है, ये वैल्यू चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगाइए। तो आप बता सकते हो कंपनी ने 12% प्रॉफिट किया तो इतना होगा, 13 किया तो इतना, 14 किया तो इतना, 15 इतना, 16 those things। सर वो माइनस साइन कैसे हटा सकते हैं? पीएमटी फंड को मत लिखिए पर, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्या? पीएमटी के आगे मैंने माइनस लगाया है। Clear everyone? Got it. Got it. Got it. Okay. Okay, good. So we are good then. So you take any situation homework, एक कोई भी situation ले लो। पहले तो सिनारियो मैनेजर का आप प्रैक्टिस करो, सिनारियो ले लो जो हमने अभी प्रोडक्शन रिलेटेड बोला था, वो डिस्काउंट बिग बिलियन डे से, दैट यू कैन टेक। एंड देन डेटा टेबल के लिए फाइनेंस का कोई भी सिचुएशन ले लो, सेम कैलकुलेशन भी कर सकते हो फॉर डिफरेंट वैल्यू। और इफ यू वांट सम अदर फॉर्मूला, अप्लाई द फॉर्मूला, सिलेक्ट रोज एंड कॉलम्स। जो फॉर्मूला का सेल सिलेक्ट चेंज हो रहा है वही तो सिलेक्ट करना है आपको, राइट? सॉरी, Sir, can you show again that applied formula PMT one? ओके। सो पीएमटी हमने फॉर्मूला सिलेक्ट किया था, फॉर्मूला स्टैक, रेट इज नथिंग बट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन पीईआर इज नथिंग बट पर ईयर और पर मंथ, एन इज नथिंग बट पीरियड, एंड पीवी इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आपने लोन कितने का लिया, आज लोन कितने का लिए, 1 लाख का लिया ना, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 1 लाख। नीचे बहुत सारे अलग अलग है, एफ वी टाइप एंड ऑल, दैट इज नॉट यूजफुल, वो ऑप्शनल है, इसीलिए हमें आंसर भी आ गया है यहाँ पे। क्लियर? ओके, गुड देन। सो देयर विल सी वन मोर व्हिच इज थोड़ा इससे भी और एडवांस है, इट इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस टूल पैक। तो वो कहाँ पे है? क्लिक ऑन डेटा एंड यू विल सी समथिंग लाइक दिस, analyze, right? Data analysis tool pack. Okay, so what is this? Click on this, then we'll understand. Okay, data analysis tool pack पे क्लिक करने से आपको ये मेन्यू, इसमें अलग अलग स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड फंक्शंस। ओके, स्टैटिस्टिक्स मतलब एनोवा, 2 फैक्टर रिप्लिकेशन, कोरिलेशन, कोवेरियंस, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये हम पाइथन में सीखने वाले हैं। एफ टेस्ट, फूरियर एनालिसिस, हिस्टोग्राम, मूविंग एवरेज। फूरियर जो शेयर मार्केट में वगैरह यूज होता है,
then sampling, regression, rank and percentile, random number, then t test, z test, ये सारे इनबिल्ट स्टैटिस्टिक्स के मॉडल्स, मतलब स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है, उस पे z ANOVA निकाला जाता है. ANOVA is nothing but sample, whether that sample is from the same population or not. मतलब मान लीजिए आपके पास 10,000 लाइन आइटम है, उसमें से आपने 20 लाइन रोज आपने कॉपी किया, ओके, एंड देन यू अप्लाइड अ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, जो भी आपका एवरेज है, ये है, वो है, ओके. इसका एक गुड एग्जांपल इज एग्जिट पोल. आपका एग्जिट पोल जो इलेक्शन के बाद कैलकुलेट होता है, कैसे होता है? व्हाट डू यू थिंक? हर एक आदमी के पास जाके वो पूछते हैं क्या? नहीं, राइट? वो क्या करते हैं? सैंपल सिलेक्ट करते हैं, एंड देन दे प्रिडिक्ट समथिंग. तो सिमिलरली अभी मुझे बताइए, जो सैंपल उन्होंने लिया था, तो वो लोग एग्जैक्टली उन्होंने वोट किया था या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? राइट? तो ये नहीं पता चलेगा. तो ये पता करने के लिए देयर इज टेस्ट कॉल्ड एनोवा. तो एनोवा क्या करता है? इंश्योर करता है कि वो लोग जो आप सिलेक्ट कर रहे हो वो उसी में से है. ये मैथमेटिकली प्रूव करता है, ओके, मैथमेटिक्स लगा के, स्टैटिस्टिक्स के मॉडल. तो जिन्होंने अभी इस साल का पोल दिया था, उन्होंने ये सारे फंक्शंस यूज नहीं किए थे, इसलिए इतना गलत हो गया, और एल्स इट नेवर डेविएट्स फ्रॉम दैट, राइट? बट ऑब्वियस है. सो अभी ये सिनेरियो में पॉपुलेशन मतलब पूरा डेटा सेट, मतलब जो जो लोगों ने वोट किया है, इट्स कॉल्ड पॉपुलेशन. एंड जो सैंपल है, मतलब जो एग्जिट पोल बनाने वाले पोलस्टर है, उन्होंने जो सैंपल सिलेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड सैंपल. सो पॉपुलेशन एंड सैंपल. सो ऑल दिस टेस्ट, जो भी एनोवा हो गया, टी टेस्ट हो गया, दे मेक श्योर आपका पॉपुलेशन, सैंपल पॉपुलेशन का पार्ट है, ये इंश्योर करता है. मतलब ऐसा नहीं कि रैंडमली वोट किया नहीं है और उसको पूछ रहा हो, अरे आपने किसको वोट दिया है, राइट? इट डजंट मेक सेंस. सो ये थोड़ा और आगे जाके एडवांस बन जाता है. सो few more things such as correlation, covariance. Correlation is nothing but it correlation indicates mathematical relation between two variables. To give an example, अभी speed versus time लीजिए. आप 50 के स्पीड से जा रहे हो तो 1 घंटा लग रहा है, 80 के स्पीड से जाओगे तो आधा घंटा लगेगा. तो जैसे स्पीड बढ़ रहा है, टाइम कम हो रहा है. तो ये क्या है? इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन है. तो ये मैथमेटिकली कैसे प्रूव करोगे? इफ यू अप्लाई कोरिलेशन, तो आपको दोनों के बीच का रिलेशन पता चलेगा, और इसका वैल्यू आता है -1. वैल्यू वेरिएट होता है +1 to -1. कोरिलेशन 1 आ गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोरिलेशन -1 आ गया तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो ऑल दीज थिंग्स आप आगे जाके डेटा साइंस में बहुत ज्यादा यूज करते हैं. डेटा एनालिटिक्स से जब डेटा साइंस में जाओगे, यू विल स्टार्ट लर्निंग ऑल दीज थिंग्स, ओके. अभी के लिए इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट अंडरस्टैंड कि ये सब कुछ पॉसिबल है, ऑल दीज थिंग्स. और जो जो आप सीखते हो, जो भी है इन नेचर, इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, पॉपुलेशन, सैंपल, जो भी आप डे टू डे में काम करते हो, मे बी फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे, आपका इकोनॉमिक्स रहे, एवरीथिंग कैन बी प्रूव्ड मैथमेटिकली, राइट? ये ग्रेविटी वगैरह जो प्रूव हुआ है, मतलब साइंस है, साइंटिस्ट वगैरह, और स्पीड ऑफ लाइट वगैरह, एवरीथिंग कैन बी प्रूव्ड यूजिंग मैथमेटिक्स. तो मैथमेटिक्स के अलग अलग ऐसे अलग अलग फंक्शंस है जो प्रूव करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग. ये फोर्स कितना है उसके कैलकुलेशन, आपका इकोनॉमिक्स, जो पोलस्टर है वो पोल प्रिडिक्शन, एवरीथिंग कैन बी मतलब जस्टिफाइड यूजिंग मैथमेटिक्स. मतलब स्पीड बढ़ने से टाइम कम क्यों होता है, मैथमेटिकली प्रूव करो. ऐसा नहीं कि हर बार मैं ट्राई करते बैठूं, मतलब 50 के स्पीड से इतना कम हो रहा है, 51 के स्पीड से, 52 के, 53 के, ये करना है कि हर बार? नो, राइट? समबडी हैज डन सम फार्मूला, ये कोरिलेशन वगैरह क्रिएट किया है, उसके बेसिस पे उन्होंने फार्मूला बनाया है, एंड वो फार्मूला हम सीखते हैं फिजिक्स में एज अ स्टैंडर्ड फार्मूला, राइट? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम.
तो ये कैसे आया? somebody calculated correlation covariance, उसके बेसिस पे वो फॉर्मूला आया, right? This is how everything works. So चलिए we'll see couple of example and then we'll check. So okay, पहले तो इसको detail is, that's why I'm okay. ठीक है, सेट है, प्रॉफिट है, मार्जिन है मेरा, कितना है प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स, परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, देन टोटल एक्सपेंस, मार्केटिंग, देन इन्वेंट्री। मतलब एक आइटम में प्रॉफिट 94 है, ऑल दोस थिंग्स, इन्वेंट्री कितना है, उसका खर्चा कितना है, उससे रिलेटेड कुछ डेटा है, ओके। एंड देन यू नीड, उसका एक सबसेट मैंने यहाँ पे निकाला है, टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट क्या है। सो ये जो मैंने टेबल यहाँ पे कॉपी किया है, राइट, सॉरी, अभी मैंने सिलेक्ट किया है, ये सैंपल इसी डेटा में से है कि नहीं ये चेक करना है। सो फॉर दैट इज एफ टेस्ट एंड टी टेस्ट के लिए डेटा सेट्स। तो एनालिसिस टूल पैक, एफ टेस्ट सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे, एफ टेस्ट टू सैंपल फॉर वेरिएंस, प्रेस ओके, सिलेक्ट करना है रेंज 1, वेरिएबल 1, 2, वेरिएबल 1 is nothing but this, right? Variable 2 is this one, sorry, लेबल है क्या? yes, यहाँ पे मुझे 3 करना चाहिए, okay, I need to select this once again, लेबल्स मैंने नहीं सिलेक्ट किया था, ये लेबल्स है, लेबल्स है क्या? yes, what is अल्फा, वेरिएंस का पार्ट है वो, आउटपुट में कहा चाहिए न्यू वर्कशीट, प्रेस ओके, ये कुछ आउटपुट आपको आएगा, अभी आपको समझ में आएगा, लेटेस्ट ट्राई। स्मॉल कार का मीन कितना है, उसने डायरेक्टली एवरेज निकाला है, मीन मतलब बिग कार का मीन, वेरिएंस, डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऐसे कुछ डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, हाउ फार द स्प्रेड इज फ्रॉम द मीन, ये मीन वैल्यू से मेरा ये सारा डेटा कितनी दूर तक जा रहा है, वेरिएंस, समथिंग लाइक दिस, एंड देन स्टैंडर्ड प्लस और डेविएशन, माइनस, सिग्मा, कैसे वो यस 3.2 सिग्मा, राइट, ये देन एक एफ वैल्यू रहता है, क्रिटिकल वैल्यू, एफ एंड पी, तो एफ टेस्ट एंड पी टेस्ट, इसके ऊपर कुछ वैल्यूज है, इट शुड बी लेस देन 0.5%, 0.5 से नीचे आना चाहिए ये, इट प्रूव्स कि whatever sample I have taken that is from the population. I may not be accurate क्योंकि मुझे भी पढ़ के it 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 is bit while, मतलब मैंने भी इतना डिटेल में I don't use in this detail, but by and large ऐसे ही काम करता है, there are some different values statistics related. One important हमारे पास एक है data analysis, descriptive statistics, something like descriptive statistics, ये हम यूज करेंगे even in Python also, ये देखिए descriptive statistics, press OK, तो आपको रेंज सिलेक्ट करना है, ओके, एक कॉलम सिलेक्ट करना है, रेंज इन कॉलम, मान लीजिए इन्वेंट्री के कॉलम का पूरा डेटा आप सिलेक्ट कर दीजिए, है ना, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया, ड्रॉप डाउन, लेबल है कि आपके कॉलम को, यस, प्रेस, देन आपको क्या चाहिए, एक नए वर्कशीट में आउटपुट चाहिए, ठीक है, समरी चाहिए, के nth कितने स्मॉलेस्ट चाहिए, कितना छोटा इंटरवल वगैरह यू कैन डिफाइन, प्रेस ओके, मीन, जितने भी कॉलम में डेटा है उसका एवरेज क्या आएगा, ओके, डिस्कनेक्ट, आई गेस पता चला उसको ऑलरेडी टाइम हो गया है ना, आई नो थोड़ा इट्स बिन 2 से 3 मिनट लेट हुआ है, बट I don't want to break your flow.
network disconnected. Online, hope everyone. Yes, sir. Okay, we'll explain another 2 to 3 minutes. Just a second. Summary statistics मोड वही आएगा, वेरिएंस लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, एवरेज क्या आएगा, कितने नंबर्स है, कर्टोसिस, स्क्यूनेस, पता है किसी को, दैट विल बी देयर। जो आपने फॉर्मूला लगा के अभी तक फाइंड आउट किया था सब कुछ आ जाएगा, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, मिनिमम, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, सब कुछ आ जाएगा। ऑनलाइन क्लियर सबको, हाउ इट वर्क्स, विल कंटिन्यू 2 to 3 सर इसके ऊपर पे हम डायग्राम बना सकते हैं ना, कुछ चार्ट वगैरह। मेन अपना जो ये जो इन्वेंटरी मिल रहा है हम पे हमें, हाँ उसके ऊपर जो डायग्राम रहता है, मतलब हाँ माइनस मीन मीडियम मोड का जो डायग्राम रहता है, बॉक्स डायग्राम, हाँ तो वो शो कर सकते हैं क्या? हाँ, डायरेक्टली डेटा सिलेक्ट करके आप इंसर्ट चार्ट्स चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हो। इट इज नॉट कनेक्टिंग। ओके, ठीक, नॉट एन इशू। बाकी देखेंगे। ओके, ऑनलाइन। So thank you. Thanks a lot of you for your time.